ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਤੇ ਸਮਾਚਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਛਿੜੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਪਰਤੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ, ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਲਿਮਿਟਡ ਬਚਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਬਚਾ ਕੇ ਪੀਣਾ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬੰਕਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਬਾਹਰ ਸ਼ੈਲਿੰਗ, ਬੰਬਿੰਗ, ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹ ਸਭ ਫੇਸ ਕਰਾਂਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜੋ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ 24 ਸਵੇਰੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। ਖਾਰਕਿਵ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਚ 4-5 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਖਾਰਕਿਵ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਫਿਰ ਸੋਚਿੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਬਾਏ ਬੱਸ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਵੈਸਟ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਰੋਮੇਨੀਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਟੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਣਾ ਐਂਡ ਦਿੱਲੀ ਟੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਸਡਨਲੀ ਬਣਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਲੋਟ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਕਾਫੀ ਸਹੀ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਉੱਥੋਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਰਟਿਲਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ 6 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿਟੀ ਸੀ ਖਾਰਕਿਵ, ਉੱਥੋਂ ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹ 1600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਰਿਸਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਚੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾ ਚੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਬੋਨੀ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत करदਿਆਂ ਕਿਹਾ, इंडियन फ्लैग ने हमारी बहुत हेल्प करी है, ना सिर्फ इंडियंस के लिए बल्कि उन नेशन के बच्चों के लिए भी जो इंडिया को बिलोंग नहीं करते। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थे, उन्होंने भी इंडियन नेशनल फ्लैग को यूज करा। चाइनीज स्टूडेंट्स ने इंडियन फ्लैग को यूज करा है अपनी बसेस में लगाकर, ताकि बसेस अगर आगे रोक भी दी जाती है रशियन ट्रूप्स द्वारा तो ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए और हमारा जो पैसेज है वो सेफली हो सके। इस लेवल पे काम करना कोई आसान चीज नहीं होती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितनी भी अरेंजमेंट्स करवाई है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रही। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਖਾਰਕਿਵ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 6th ਈਅਰ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਸੀਗਾ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਡਿਗਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਬੰਬਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਸਵੇਰ ਵੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ। ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ATM ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਸੀ, ਕੈਸ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਕੈਸ਼ ਖਤਮ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਸ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਖਾਰਕਿਵ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਖਾਰਕਿਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਵ ਗਏ, ਫਿਰ ਕੀਵ ਤੋਂ ਲਵੀਵ ਪਹੁੰਚੇ, ਫਿਰ ਲਵੀਵ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਰੋਮਾਨੀਆ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਦੀ ਬੱਸ ਲਈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਆਪਦਾ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਰਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਵਾਨੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, बम्बार्डमेंट्स चल रही थी, फायरिंग की आवाज़ें भी आ रही थी, वहाँ पे भगदौड़ मची थी और वहाँ के खुद के लोग भी भागना चाहते थे वहाँ से। तो ऑब्वियसली जब वो देखते थे कि हमें मौका नहीं मिल रहा, इंडियंस या और किसी कंट्री के लोग चढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे पार्शियलिटी हो जाती थी। एग्जैक्ट रोल भारत सरकार का था हमें हंगरी से या यूरोप से इंडिया लाना। हर एक चीज़ का सोल्यूशन डिप्लोमेसी से निकल सकता है। कोशिश यही की जानी चाहिए कि युद्ध ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड किया जाए। ਨਵਾਂ शहर ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਰੀਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, टर्नोपिल सिटी से हूँ। यूनिवर्सिटी का नाम टर्नोपिल मेडिकल यूनिवर्सिटी है। वहाँ पे हालात अभी अगर देखा जाए तो बॉर्डर एरियाज में ज़्यादा ख़राब है। हम क्योंकि वेस्टर्न साइड्स में थे तो वहाँ पे अभी सेफ है, कुछ ज़्यादा वो नहीं है। बॉर्डर तक बच्चों ने खुद स्ट्रगल किया है, खुद बॉर्डर पार किया है उन्होंने, और बॉर्डर के बाद हमारी इंडियन एम्बेसी ने हमें हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। हमारे प्रॉपर बच्चों को फूड दिया है, शेल्टर दिया है, बहुत ज़्यादा केयर किया है बच्चों का। और स्पेशल थैंक्स बोलते हैं मोदी जी का कि उन्होंने इतना ज़्यादा सभी बच्चों को सपोर्ट किया है, उनकी हेल्प की है। हमारी जो सिटी है वो बॉर्डर एरिया से बहुत दूर है, तो हमें कोई भी बॉर्डर हमारे नज़दीक नहीं था। बॉर्डर एरियाज़ के 40 किलोमीटर्स के अंडर बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ था और बसेस और कार्स वगैरह का, तो हमारी बस ने हमें 40 किलोमीटर्स पीछे उतार दिया था और वहाँ से हमें बाय वॉक चलना था। घर पहुँच के बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा खुश हुई हूँ।
ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚੇ ਅਕੁਲ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, मैं MBBS की पढ़ाई करता था खार्किव यूक्रेन में और फाइनल ईयर था। वहाँ पे जो हालात हुए उसके बाद हमारा आना बहुत जरूरी हो गया था। थैंक्स टू मोदी जी और हमारी गवर्नमेंट है उनका कि उन्होंने हमारी इतनी अच्छी हेल्प करी और हॉस्पिटलाइजेशन बहुत अच्छी दी। जिस बम बारी है और मिसाइल है और डर लगता था कभी भी हमारे फ्लैट में ना हो जाए, क्योंकि उसके बाद सिविलियंस भी वहाँ पे बड़े मरने लग गए, फ्लैट्स में जाने लग गए और बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई हैं। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਥਲ 'ਚ ਪਰਤੇ ਗੌਰਵ ਨਰਵਾਲ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ऑपरेशन गंगा के थ्रू मैं 4 तारीख को इंडिया पहुंचा। सरकार ने हमारी इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा हेल्प की। हमें बॉर्डर के थ्रू काला गया, एम्बेसी का हमारा साथ फुल सपोर्ट था और ऑपरेशन गंगा के थ्रू हम 4 तारीख को सुबह दिल्ली पहुंचे। काफ़ी सहायता की गई सरकार द्वारा हमारी, इसके लिए मैं सरकार का और हमारी इंडियन मिलिट्री का बहुत ज़्यादा थैंक यू करता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री द्वारा जो ये ऑपरेशन गंगा चलाया गया उसके थ्रू ही हम इवैक्यूएट हो पाए, उसके लिए सरकार का बहुत ज़्यादा धन्यवाद। ਰੇਵਾੜੀ ਤੋਂ ਗਰੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ। सब लोग ये लग रहा था कि पॉलिटिकल डिप्लोमेसी जो भी है होके खत्म हो जाएगा, बट देन कीव पे इन्वेजन हुआ, कीव पे हुआ, खार्किव ओडेसा वगैरह पे अटैक हुआ। उस दिन बहुत लोग कीव से इंडिया आ रहे थे वापस, सबका 24 को बहुत बच्चों का फ्लाइट था इंडिया वापस आने के लिए। वो सब उधर कीव में फंस गए। उनको फिर निकालने के लिए उनको आई थिंक 2 दिन सिर्फ कीव से चेन्नई वापस आने में लगा, जो 7 घंटे का रास्ता है। इस बिकॉज इतना जाम हो गया था कि सब लोग ईस्ट से वेस्ट की तरफ आ रहे थे, तो जाम हुआ में उधर 2 दिन उधर लोग फंसे रहे। और उस दिन अटैक का हुआ था, अटैक उसी दिन हमें एम्बेसी से आ गया था नोटिस कि आप लोगों को निकाल दिया जाएगा, एंड नेक्स्ट डे ही फ्लाइट्स का पूरा आ गया था कि फ्लाइट्स जो भी है, और हम फर्स्ट बैच में आ गए। बॉर्डर तक तो डिस्टेंस 1 ही घंटा है, बट उधर रोमानिया की तरफ बहुत लोगों के पास रोमानिया का वीजा है, तो वो लोग उधर ही जा रहे हैं सब यूक्रेनियंस। तो बहुत उधर पूरा केओस है बहुत, तो उधर वो लोग 8-9 किलोमीटर पहले रोक देते हैं, तो मैं इतना चलना पड़ता है। हमारे से बाद वाला जो बैच आया है 3rd and 4th के टाइम पे दूसरी यूनिवर्सिटीज के बच्चे आ गए थे, कीव के बच्चे, विरित्सा के बच्चे, ये टर्नोपिल वगैरह से बच्चे आ गए थे। तो अभी उधर केओस हो गया क्योंकि सब यूनिवर्सिटीज के बच्चे हमारी यूनिवर्सिटी हमारे चेन्नई में आ गए। 3-4 हजार बच्चे एक साथ इकट्ठा हो गए थे, तो आई थिंक उनको क्रॉस करने में ऑलमोस्ट 2 दिन लगा है। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਵੰਸ਼ਿਕਾ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, बहुत डरे हुए थे हम, बहुत पैनिक में थे, पेरेंट्स कॉल कर रहे थे, हमें ये नहीं पता था कि हमारे साथ क्या होने वाला है। आई वुड लाइक टू रियली थैंक मोदी सर। मैं चेन्नई रीजन में पढ़ाई कर रही थी और मेरा 4th ईयर चल रहा था। हम बहुत डरे हुए थे क्योंकि हमें भी नहीं पता था कि क्लासेस ऑनलाइन होंगी या ऑफलाइन होंगी, क्योंकि पहले हमें ये बताया गया था कि आपकी जो क्लासेस हैं वो 25th तक ऑनलाइन भी हो सकती हैं या ऑफलाइन भी हो सकती हैं। अगर हमें ये पता होता कि हमारी क्लासेस 25th के बाद भी ऑनलाइन चल रही हैं, तो हम सब बच्चे पहले ही यहाँ पर इंडिया अराइव हो जाता। हमें पता चल रहा था कि कीव और खार्किव रीजन्स में आर्मी टैंक्स एंड आर्मी सोल्जर्स आ चुके हैं, और हमें बहुत डर था कि कहीं वो हमारी रोड पर या कोई वो बॉम्ब ब्लास्ट नहीं कर दें, क्योंकि हमें पता चला था कि एयरपोर्ट्स भी डिस्ट्रॉय हो चुके थे वहाँ के। सिर्फ चेन्नई रीजन का जो एयरपोर्ट था वो अंडर डेवलपमेंट था, इसीलिए वहाँ पर कोई हार्म उन्होंने नहीं किया था। बहुत खुशी हुई। सबसे पहले अपने पेरेंट्स को मन में रखा कि अब हम बिल्कुल सेफ हैं। सबसे पहले यही आया कि इंडियन गवर्नमेंट का, एयर इंडिया का सबसे ज्यादा थैंकफुल हुआ कि एयर इंडिया जैसे ही वहाँ पर बैठे उन्होंने इतना ज्यादा फैसिलिटी थी वहाँ पर, वो बार बार पूछ रहे थे कि आपको क्या चाहिए। आप ਜੀਨ ਤੋਂ ਤਮੰਨਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। हम वहाँ पे फंसे हुए थे और इंडियन एम्बेसी ने भी हमारी बहुत हेल्प किया है, नरेंद्र मोदी जी का और इंडियन एम्बेसी का। नरेंद्र मोदी जी ने जो ये गंगा ऑपरेशन चलाया है, इसकी वजह से ही हम सारे वापस आ पाए हैं अपने घर पे। उन्होंने हमारे लिए सारी अरेंजमेंट्स की, बॉर्डर क्रॉस करवाए, हमारे लिए होटल रहने का भी, खाने पीने का भी सभी इंतजाम किया उन्होंने। भारत का झंडा लगा के फिर हम ट्रेन वगैरह में चढ़े थे और बस इसके ऊपर भी भारत का झंडा लगाया हुआ था, और हर जगह हम भारत का झंडा लेकर ही चल रहे थे। ਹਿਸਾਰ ਪਰਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। यूक्रेन में MBBS फर्स्ट ईयर में पढ़ता था, जिसमें हमें 5 मार्च को ऑपरेशन गंगा के तहत हमें वापस लाया गया है। इसमें हमें खाना वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया। वह हमें बिना टिकट के पैसे लिए यूक्रेन से इंडिया लाया गया है, जिसमें मैं हरियाणा सरकार व एम्बेसी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं इंडियन गवर्नमेंट का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। जितना अच्छा ऑपरेशन चलाया, वह यूक्रेन में फंसे हुए सभी बच्चों को वापस लाया गया। ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੋਹਿਤ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। मैं यूक्रेन के खार्किव शहर में VN काराजिन खार्किव नेशनल यूनिवर्सिटी में 6th कोर्स में पढ़ता हूँ, और मैं 23 तारीख की मेरी फ्लाइट थी और 24 को मैं जयपुर अटैक से पहले यहाँ पहुँच गया था, और सरकार ने पूरी सहायता की है हमारी, और मैं टाइम से घर आ गया अपने पेरेंट्स के पास, और मैं धन्यवाद करता हूँ सरकार का। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਚਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਾਚਿਕਾ ਚੰਚਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ।